Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss about anemia and its different types. So, what is anemia? Anemia is a disorder during which the concentration of hemoglobin in the blood decreases, which may be either due to the reduced number of red blood cells or low quantity of hemoglobin in the red blood cells. Okay, anemia may be due to low quantity of hemoglobin in the red blood cells, or there will be low quantity, mean less number of red blood cells in the blood. Okay, now we will discuss its different types. Number 1, megaloblastic anemia. Number 2, hemolytic anemia. Number 3, aplastic anemia. And number 4, blood loss anemia. So first of all, we will discuss about the megaloblastic anemia. So what is megaloblastic anemia? Megaloblastic anemia occurs when folic acid, vitamin B12 or extrinsic factor which is present in our stomach is missing. So loss to any one of these three factors causes megaloblastic anemia. Previously we have discussed that folic acid and vitamin B12 is necessary for the maturation and formation of the red blood cells. So when folic acid and vitamin B12 are not absorbed from the small intestine, then the red blood cells grow in large size. And in large size, these red blood cells can rupture very easily. Okay? So, in megaloblastic anemia, vitamin B12 and folic acid are intrinsic factor. What is intrinsic factor? Actually, intrinsic factor is a glycoprotein which is secreted from the parietal cells of the gastric glands. Okay, actually it is a protein glycoprotein which is secreted by the parietal cells. जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हमने मैचुरेशन को डिस्कस किया था रेड ब्लड सेल्स की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे स्टोमक के अंदर जो पैरेटल सेल्स हैं मेन के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर खारिज करते हैं, मेन इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करते हैं स्टोमक में। वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? दरअसल वो ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड इसके साथ अटैच होती है और फोलिक एसिड और विटामिन B12 को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डाइजेशन है उससे बचाती है। ओके, प्रिवेंट फ्रॉम द gastrointestinal डाइजेशन। ओके, जो इनके विटामिन B12 और फोलिक एसिड है इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेशन से ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्शन फराहम करती है। ओके, ताकि ये फर्दर मूव करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जज़ब हो सके। ओके, अगर किसी वजह से
ये इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो जाएगा, या विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जो है क्वांटिटी कम हो जाएगी हमारी बॉडी में। मतलब कि हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मिकदार कम होगी उस मिकदार से जिस जो मिकदार हमारी बॉडी को जरूरत है। तो उस कंडीशन में जो है एनीमिया काज होगा, जिसको हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस केस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा, इस वजह से हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, और इसी को हम परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। ओके, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे hemolytic anemia. So in this anemia the hemolysis of red blood cells occur. Now hemolytic anemia further divided into three parts. Number one, hereditary spherocytosis. Number two, sickle cell anemia. And number three, erythroblastoses pilaris. हेमोलाइटिक एनीमिया, इन तीनों केसेस में रेड ब्लड सेल्स की हेमोलाइसिस होगी। किस तरह होगी इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, इन हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस, इन दिस एनीमिया, जैसा कि नाम से जाएगा सफीरो मीन स्फेरिकल, साइटोसिस मीन रेड ब्लड सेल्स, spherical red blood cells in the blood. The presence of spherical red blood cells in the blood is known as spherocytosis. Okay, so actually the shape of the red blood cells is biconcave, but in this case the shape of the red blood cell is spherocytosis, means spherical. Spherical. ये शेप स्फेरिकल क्यों होती है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें कि ये एक बाइकनकेव नॉर्मल रेड ब्लड सेल है। ओके, बाइकनकेव नॉर्मल रेड ब्लड सेल। इधर हमारे पास फिलामेंट्स होंगे, प्रोटीन, फिलामेंट प्रोटीन के। जो ये प्रोटीन है इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रिक प्रोटीन, और इस स्पेक्ट्रिक प्रोटीन को देखें, ये हमारे पास है ये स्पेक्ट्रिक प्रोटीन, ये फिलामेंट्स का काम कर रही है इन साइटोप्लाज्म ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और इस स्पेक्ट्रिक प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स को शेप प्रोवाइड करती है, स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करती है। ओके, और इसकी इलास्टिसिटी को जो है वो मेंटेन करती है। ओके, ये स्पेक्ट्रिक प्रोटीन इसकी शेप देती है रेड ब्लड सेल्स को, और इसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती है। ओके, ये स्पेक्ट्रिक प्रोटीन के दो फंक्शन हैं। और ये प्रोटीन फर्दर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ एनकायरिक प्रोटीन के साथ एनकायरिक प्रोटीन की मदद से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ये है ये एनकायरिक प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो हैं स्पेक्ट्रिक और एनकायरिक प्रोटीन कलेक्टिवली मिलके
रेड ब्लड सेल की जो बाइकनकेव शेप है उसको बरकरार रखती हैं। और अगर किसी वजह से, जो कि हमने लफ्ज किया है हेरिडेटरी, मीन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ओके, अगर किसी वजह से इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन आएगा, जेनेटिक चेंज आएगा इस स्पेक्ट्रिक और एनकाइलिन प्रोटीन में, तो इस जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से, इस जेनेटिक चेंज की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है ये अपनी नॉर्मल इलास्टिक और बाइकनकेव शेप को बरकरार नहीं रख सकेगा। इस वजह से इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरह का एक शेप बन जाएगी। जब इस स्पेक्ट्रिक प्रोटीन और एनकाइलिन प्रोटीन में किसी वजह से म्यूटेशन होगी, ठीक है, तो उस म्यूटेशन की वजह से ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, मतलब ये अपनी रेड ब्लड सेल की जो शेप और इलास्टिसिटी है उसको बरकरार नहीं रख पाएंगी, जिसकी वजह से इसकी जो बाइकनकेव शेप है वो स्फेरिकल शेप में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इस वजह से जो अनीमिया होगा उसको हम कहेंगे हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। In this case, we have discussed in previous classes. In this case, a normal amino acid known as glutamic acid is not present on the beta chain of the hemoglobin. We know that there are four chains present in one molecule of the hemoglobin: two alpha chain and two beta chain. Two alpha chain and two beta chain. And in beta chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. And in beta chain, one amino acid, glutamic acid, on the 6th position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glutamic acid is replaced by valine. Okay, valine. Okay, so that's why this hemoglobin will not perform its proper function, and this hemoglobin will convert the red blood cell into a sickle shape like this one. Okay, when mutation occurs in the beta chain of the hemoglobin, then valine is present in place of glutamic acid. In this case, this hemoglobin will not perform its normal function and will convert the hemoglobin, the red blood cell, into a sickle shape. Okay, and in this way, this red blood cell can rupture easily. Okay, now the third one is erythroblastosis fetalis. This anemia occurs during the pregnancy. Okay, in this case, when an Rh negative mother conceive a child whose blood is Rh positive. Rh negative mother conceive a child whose blood is Rh positive. We know when the child's blood precipitates through the placenta and will move into the mother blood circulation, then the mother blood will produce anti-Rh antibodies. Okay, anti-Rh so when the child's blood precipitates into the mother's blood, then this Rh positive blood will stimulate the mother's Rh negative blood to form the anti-Rh antibodies. Then these antibodies will move and precipitate into the child's blood. Then these antibodies will destroy the Rh positive blood of the Rh positive red blood cells of the child and move into the blood stream. So when these antibodies precipitate through the placenta and will move into the child's blood circulation, then these antibodies will destroy the Rh positive red blood cell of the child. Okay, in this case, the destruction of the red blood cell occurs in a child, and the child will
with the erythroblastosis vitellis anemia. Okay. Now the third one is aplastic anemia. So aplastic anemia occur when during chemotherapy, okay, or during high dose radiation. During chemotherapy, for the destruction of the cancer cell, and when we use high dose radiation. So aplastic anemia occur when we during chemotherapy and when we use high dose radiation. Then there will be destruction of the hematopoietic stem cell. Okay, as we have discussed. As we have discussed in my previous lecture, that the hematopoietic stem cell will give rise to myeloid stem cells and lymphoid stem cells. Okay, hematopoietic stem cell, hematopoietic stem cell will give rise to myeloid stem cells and lymphoid. So during chemotherapy and high dose radiation, these radiation will destroy the stem cells which is present in the bone. So these, when they destroy this stem cell, then this stem cell will further differentiate into myeloid stem cells and lymphoid stem cells. And we know that myeloid stem cell will give rise to red blood cells, white blood cells, and platelets. White blood cells, red blood cells, and platelets. Okay. So when during chemotherapy and high dose radiation our stem cells gets damaged, then there will be no production or less production of white blood cells, red blood cells, and platelets. If there will be low production of white blood cells, then there will be more chances of infection. Okay, infection. And if there will be low count of red blood cells, then there will be more chances of aplastic anemia. And if platelets are low in the blood, then if we get damage or any injury, then the blood clot will be not formed. Okay, so this is the aplastic anemia which occur due to the during chemotherapy and high dose radiation. Okay, and the fourth one is blood loss anemia. Blood loss anemia occur during hemorrhage or any damage or any road accident. Then there will be a loss of blood loss during that damage. So blood loss anemia is also known as macrocytic hypochromic anemia. Macrocytic hypochromic anemia. माइक्रो मीन स्मॉल, साइटिक मीन सेल, मीन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज जो है वो स्मॉल रह जाएगा। हाइपो मीन लेस एंड क्रोमिक मीन कलर, मीन जो कलर होगा रेड ब्लड सेल्स का वो लाइट डार्क होगा। लाइट डार्क क्यों होगा? जब भी इंजरी होगी तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होगा। जब कभी भी कोई हेमरेज होगी या कोई ड्यूरिंग एक्सीडेंट, अगर उस नतीजे में ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाए तो जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से उतनी नहीं हो पाती जितनी कि हमें हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहेंगे मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ओके, लो absorption
ऑफ आयरन। हमारी जो बॉडी है, ये ब्लड का जो प्लाज्मा पोर्शन है उसको बनाने के लिए इसको 1 से 3 दिन लगते हैं, और जो हेमोग्लोबिन है इसको बनाने में 3 to 6 वीक्स चाहिए होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए तो उतनी क्वांटिटी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगे जितने के लॉस हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ओके, तो आज हमने जो है एनीमिया को डिस्कस किया। एनीमिया है क्या? एनीमिया का मतलब है कि लो ब्लड हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कम होगी, या तो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में कम होगी या रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम होगी ब्लड में। ओके, इसके अलावा हमने एनीमिया की 4 टाइप्स डिस्कस की। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसको हम पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड एब्जॉर्ब ना हो पाए किसी वजह से। ठीक है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये डैमेज हो जाए, ग्लाइकोप्रोटीन, या इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारी स्टोमक में कम हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। उसके नतीजे में भी जो है एक कंडीशन काज होगी, उसको हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस, इस केस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाएगी, जैसा कि नाम से जाए स्फीरो। और इसके बाद सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी जो शेप है वो सिकल टाइप बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड है, जो बीटा चेन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो ग्लूटामिक एसिड है वो अपनी नॉर्मल प्लेस पे नहीं होगा और ये रिप्लेस हो जाएगा वेलाइन से। ओके, तो इस तरह जो हीमोग्लोबिन है ये प्रेसिपिटेट होके एक सिकल शेप बना देगी रेड ब्लड सेल की। ओके, इसके अलावा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस में जब एक RH नेगेटिव मदर जो है वो RH पॉजिटिव चाइल्ड को कंसीव करेगी तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है जब चाइल्ड का जो ब्लड है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो एंटी-RH एंटीबॉडीज बनाएगा। फिर वो एंटी-RH एंटीबॉडी जब चाइल्ड की ब्लड स्ट्रीम में आएंगी तो चाइल्ड के रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो इसके नतीजे में जो एक कंडीशन काज होगी उसको हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ओके, इसके अलावा जो एप्लास्टिक एनीमिया है ये कब होता है? जब हम ड्यूरिंग कीमोथेरापी, मीन जब कैंसर के दौरान हम कीमोथेरापी करते हैं या किसी भी चीज या हम हाई डोज रेडिएशन यूज करते हैं बॉडी पे, तो उसके नतीजे में जो हमारी बोन्स में हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि यही सेल्स बाद में मायोलाइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स के प्रिकर्सर्स हैं, और फर्दर मायोलाइड स्टेम सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर है। जाहिर सी बात है जब ये स्टेम सेल डैमेज होगा तो ये व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी जो है नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं बन पाएंगे। तो इसके नतीजे में जो कंडीशन काज होगी उसको हम कहेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। और ब्लड लॉस एनीमिया, ये तो आपको पता है हेमरेज, ड्यूरिंग हेमरेज और इंजरी और एनी रोड एक्सीडेंट, when the blood loss, then a condition known as blood loss anemia. So hopefully today you understand my lecture. See you in my next lecture. Allah Hafiz.